صدر آصف علی زرداری کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ صدر مملکت کا ملک کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باخبر قیادت، قومی اہم آہنگی اور مربوط پالیسی سازی کی اہمیت پر زور۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کا مقصد ملک میں قومی سطح پر مکالمے کو فروغ دینا ہے۔ صدر مملکت نے قومی سلامتی سے متعلق آگاہی بڑھانے کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ ورکشاپ قومی سلامتی کے لیے ہمہ جہتی نقطہ نظر اپنانے کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب۔ شرکاء میں اسناد بھی تقسیم کی۔ پاکستان نے کیا کہا، پاکستان کے بہاف پہ میں نے صرف ایک بات، آپ اپنے ملک اور سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال مت ہونے دیں۔ آپ اس کا کلا کواں کریں، آپ ٹی ٹی پی کو یا تو کہیں دنیا سے دور لے جائیں اپنے کسی اور کنارے پہ، یا ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ دہشت گردی ناقابل قبول، افغانستان میں استحکام چاہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ماسکو، برسلز اور بحرین کے دورے کیے، روسی صدر کے ساتھ خطے کی صورتحال اور غزہ میں امن کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ پاکستان نے افغانستان سے کیے وعدے پورے کیے۔ افغانستان نے انسداد دہشت گردی سے متعلق وعدہ پورا نہ کیا۔ افغان طالبان رجیم سے کہا ہے کہ کل عدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرے۔ چاہتے ہیں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس۔ ایک ڈیلیوژنل مائنڈ کا وی کانٹ ہیلپ اینی تھنگ۔ انڈینز، ان کے چیف نے چند دن پہلے کہا تھا کہ جی ہم نے آپریشن سندور میں آپ کو ایک ٹریلر دکھایا تھا، جس ٹریلر میں 7 جہاز گر جائیں، 26 جگہوں پہ حملہ ہو جائے، S-400 بیٹری چلی جائے، تو ابھی میرا خیال ہے اس کو ہارر فلم پوری دیکھنے کا اس کو شوق ہے۔ پھر اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو سم ہاؤ اپنی انٹرنل پاپولیشن کو اس ڈیفیٹ کو کسی طرح وکٹری میں کسی طرح بیچنا ہے، تو دے ہیو ٹو کم آؤٹ ود سچ سارٹ آف ریٹورک۔ بھارت میں خود فریبی کی سوچ رکھنے والی قیادت کی اجارہ داری۔ بھارتی آرمی چیف کا آپریشن سندور کے دوران ٹریلر دکھانے کا بیان خود فریبی کی حامل سوچ کا عکاس ہے۔ بیرون ملک سے آپریٹ ہونے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے میں مصروف ہیں۔ انسداد دہشت گردی پر تمام حکومتوں اور سیاسی پارٹیوں کا اتفاق ہے کہ اس کا حل نیشنل ایکشن پلان میں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے ملکی سلامتی کے امور پر گفتگو۔ افغان طالبان رجیم پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی۔ افغان طالبان دہشت گردوں کی دراندازی میں سہولت کاری کرتے ہیں۔ بارڈر مینجمنٹ پر سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ افغانستان کے ساتھ دوحہ معاہدے کے حوالے سے پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے کہ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کریں۔ افغان طالبان رجیم کے سامنے تمام ثبوت رکھے جنہیں وہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ رواں سال 67,023 آپریشنز میں 136 افغانیوں سمیت 1,873 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ 4 نومبر سے اب تک 4,910 کارروائیوں میں 206 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر احمد محمد عبدالعاطی کی 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان آمد۔ مصر کے پاکستان میں سفیر اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ مصر کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ غزہ کی صورتحال سمیت بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو ہوگی۔ دورہ سیاسی، اقتصادی، دفاعی، ثقافتی اور عوامی روابط کو مزید مستحکم کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ جس کی ملکیت اسی کا قبضہ۔ پنجاب میں زمین ہتھیانے والے غاصب اب قانون کے کٹہرے میں۔ برسوں سے عدالتی چکر کاٹنے والے 1005 خاندانوں کو 48 گھنٹے میں ان کی زمین، ان کی ملکیت اور ان کا حق واپس مل گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں پراپرٹی آرڈیننس کے مؤثر نفاذ پر اہم اجلاس۔ زمین کا اصل مالک جب تک قبضہ نہ لے فیصلہ ادھورا ہے، کاغذ پر نہیں، قبضہ زمین پر نظر آنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ قرآن کریم ہدایت کا سرچشمہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہی کامیابی ہے۔ نوجوان قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بنائیں۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ امت مسلمہ کو دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں ہونے والے مظالم دنیا دیکھ رہی ہے۔ مظلوم کی داد رسی سے ہی نجات ممکن ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دہشت گردی پر واضح موقف ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا عالمی مقابلہ حسن کرت کی اختتامی تقریب سے خطاب۔
صدق اللہ العظیم۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا بین الاقوامی مقابلہ حسن قرأت، ملائشیا کے قاری ایمن رضوان نے پہلا انعام جیت لیا، ایران کے قاری عدنان نے دوسری اور پاکستانی قاری عبدالرشید نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر سردار یوسف نے پوزیشن حاصل کرنے والے قاری حضرات میں انعامات تقسیم کیے۔ چیف جج قاری سید صداقت علی کی سربراہی میں کویت، مصر، پاکستان اور ایران کے معروف قرأ ججز نے فرائض سر انجام دیے۔ بین الاقوامی مقابلہ حسن قرأت میں اسلامی تعاون تنظیم کے 40 سے زائد رکن ملکوں کے قاری اور حفظاء کرام نے حصہ لیا۔ فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن، اقوام متحدہ کی قرارداد کے باوجود فلسطین میں اسرائیلی بربریت جاری۔ اسرائیلی دہشت گردی سے اب تک 70,000 فلسطینی شہید اور 1,70,000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ غزہ کے نہتے عوام کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا۔ پاکستان نے ہمیشہ آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے متعدد بار غزہ میں جاری مظالم پر بین الاقوامی سطح پر آواز اٹھائی۔ پاکستان نے فلسطینی عوام کے لیے امدادی سامان بھیج کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا حق بھی نبھایا۔ پاکستان کا فلسطینی عوام کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ فلسطینیوں نے بے مثال ہمت اور غیر متزلزل حوصلے کے ساتھ تاریخ میں نیا باب رقم کیا۔ خطے میں دیرپا امن کے لیے مسئلہ فلسطین کا منصفانہ اور دیرپا حل ناگزیر۔ غزہ امن منصوبہ 2 ریاستی حل کا اہم موقع ہے۔ عرض فلسطین سے قابض اسرائیلی فورسز کے مکمل انخلاء اور انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانا ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا عالمی یوم یکجہتی فلسطین پر پیغام۔ پی ٹی آئی اور پاکستان کے تمام دشمنوں کی سیاست ایک پیج پر ہے۔ نفرت کی سیاست میں پی ٹی آئی نے تمام حدیں عبور کر دی۔ کسی سیاسی جماعت نے بیرون ملک جا کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی صوبے میں بیٹھ کر بدامنی اور دہشت گردی کو کنٹرول کریں۔ سہیل آفریدی سیاسی بیانیے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ امریکہ نے افغان شہریوں کے لیے ویزوں کا اجرا روک دیا۔ پناہ کی تمام درخواستوں سے متعلق فیصلے ملتوی۔ یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کا بھی غیر ملکیوں کی جانچ پڑتال کے لیے پناہ گزینوں سے متعلق تمام فیصلے روکنے کا اعلان۔ امریکی قومی سلامتی اور عوامی تحفظ یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ۔ بھارت افغان گٹھ جوڑ، دہشت گردی اور شدت پسند پالیسی خطے کے ملکوں کے لیے شدید خطرہ۔ عالمی سطح پر ہونے والے دہشت گردی کے ہولناک واقعات میں افغانستان کا کردار بے نقاب۔ پاکستان میں دہشت گردی، امریکہ میں فائرنگ اور تاجکستان میں چینی ملازمین پر ڈرون حملہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ افغانستان اور بھارت کے تعلقات نے جنوبی ایشیا کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ۔ آئی ایم ایف نے فاشسٹ مودی کا معاشی فریب بے نقاب کر دیا۔ مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑی بھارتی معیشت کے جھوٹے بیانیے ناکام۔ بھارت کا 2011-12 کا معاشی ڈیٹا ناقص قرار۔ آئی ایم ایف نے بھارت کو دوسرے کم ترین درجے پر رکھتے ہوئے سی گریڈ دے دیا۔ بھارتی معیشت کے ڈیٹا میں خامیاں معاشی نگرانی کے عمل میں رکاوٹ ہیں۔ آئی ایم ایف سالانہ رپورٹ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، بلا جواز گرفتاریاں، املاک کی ضبطگی، مکانات کی مسماری اور مسلمان ملازمین کی جبری برطرفی کشمیری جہنم جیسی زندگی گزارنے پر مجبور۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی بھارتی جبر و استبداد کی کارروائیوں کی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ اور عالمی تنظیمیں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائیں۔ حریت قیادت۔ سری لنکا میں سمندری طوفان دتوا کے باعث شدید بارشیں، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے تباہی۔ اموات کی تعداد 153 ہو گئی، 191 افراد لاپتہ، 20,000 گھر تباہ، 8 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر۔ مسلسل بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند۔ دارالحکومت کولمبو میں بھی سیلاب کا خطرہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سری لنکا میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے جانی نقصان اور تباہی پر افسوس کا اظہار۔ ریسکیو اور امدادی کارروائیوں میں تعاون کی پیشکش۔ Significant strikes, 10 more seconds to go.
This has been a dogfight since round number 1, ladies and gentlemen. And that's all she wrote. Wow! History is made in Pakistan. History made in Lahore. लाहौर में दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी का कामयाब इनेकाद। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने WBA वर्ल्ड गोल्ड बैंटमवेट टाइटल का कामयाबी से दिफा कर लिया। 12 राउंड्स पर मुश्तमिल फाइट में मोहम्मद वसीम के ताबड़तोड़ हमले थाईलैंड के बॉक्सर जिग्रावत मजोंगो को शिकस्त दी। Mohammad Waseem has done it. He has defended his WBA title on home soil. He did what no other Pakistani has done up till now. He's made history. फाइट फॉर ग्लोरी मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खिलाड़ियों को इनामात दिए। मोहम्मद वसीम को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। हार और जीत खेल का हिस्सा है। इवेंट के कामयाब इनेकाद पर पाक फौज और पंजाब हुकूमत को भी मुबारकबाद देती हूँ। वज़ीर आला पंजाब के इख्तितामी तकरीब से खिताब। दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप खवातीन की सुपर फेदरवेट फाइट में पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर लाउरा अकरम फातेह। एशिया साउथ सुपर मिडलवेट टाइटल बरतानिया की जिमी केली जूनियर के नाम। एशिया गोल्ड फेदरवेट टाइटल मेक्सिको के एडवार्डो बाइस ने अपने नाम किया। एशिया गोल्ड सुपर वेल्टरवेट टाइटल फाइट में मेक्सिको के जेजेस सिराचो की कामयाबी। वर्ल्ड गोल्ड वेल्टरवेट टाइटल फाइट फ्रांस के मेमोने के नाम। Good back and forth in round. The slow one from Shaheen Shah Afridi. This one is hit down the ground, pitched out. And he gets another one, does Nawaz. Picks off and doesn't matter. Shaheen Shah Afridi. रावलपिंडी में 3 मुल्की T20 सीरीज का फाइनल। श्रीलंका का पाकिस्तान को 115 रन का हदफ। पूरी टीम 19.1 ओवर्स में 17 ओवर्स में 4 विकेटों पर 104 रन बना लिए। मैच PTV स्पोर्ट्स से HD पर बराह रास्त। और पाकिस्तान के टेनिस स्टार एहसामुल हक बैनुल-अक़वामी टेनिस से रिटायर। करियर के आखिरी मैच में रनर अप ATP चैलेंजर कप डबल्स फाइनल में जमहूरिया चेक के डोमिनिक पेलान और कजाकिस्तान के डेनिस यूवोसियोर की एहसामुल हक और मुजम्मिल मुर्तजा के खिलाफ 7-6 और 6-4 से कामयाबी। शायकीन का एहसामुल हक को खिराज तहसीन। ATP चैलेंजर कप PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। हुनर की रोशनी से जगमगाएंगे नौजवान, क्योंकि वजीर आजम के स्पेशल इनिशिएटिव के तहत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेवटेक कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बैच 3 का आगाज। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस आपको ट्रेनिंग देंगे। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, allied services, banking and finance, construction and electrical, export ready driving, manufacturing and textile, mining and minerals, green energy और languages के 3 से 6 माह के मुफ्त कोर्सेज। इस सुनहरी मौके से फायदा उठाएं और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार निभाएं। हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक वजारत तवानाई का एक और आवाम दोस्त इक़दाम 118 जदीद सर्विसेज का आगाज। अब सारिफीन न जाएं बिजली दफ्तर, न बार बार के चक्कर। बिजली की खराबी, वोल्टेज कम या ज्यादा होना, नए कनेक्शन का हुसूल या हंगामी हालात में हॉटलाइन से फौरी राबिता।
पाकिस्तान के किसी भी इलाके से किसी भी वक्त उर्दू या किसी भी इलाकाई जबान में कॉल मिलाएं और अपना मसला हल करवाएं। कॉल मिलाने के फौरी बाद मुतल्लिका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को आपकी शिकायत भेजी जाएगी। शिकायत के इंदराज के बाद आपको एक कंप्लेन नंबर दिया जाएगा जिससे आप अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पैकेज की सूरत में बिना बैलेंस कॉल मिलाने की सहूलत, नंबर मसरूफ मिलने पर कॉल बैक का ऑप्शन, अब न किसी जान पहचान की जरूरत न सिफारिश कराने की जहमत, बस 118 मिलाएं और अपना मसला हल करवाएं। इसके अलावा पावर स्मार्ट ऐप से भी शिकायत के इंदराज और ट्रैकिंग की सहूलत। वजारत तवानाई, पावर डिवीजन, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी हम आहंगी और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर दिया है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 27वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में सदर ममलकत ने कौमी सलामती से मुतालिक आगाही को तक़वियत देने के लिए शुरका की लगन को सराहा। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप कौमी सलामती के लिए हमजहती नुक्ता नज़र अपनाने का एक अहम प्लेटफार्म है। इससे कौमी सतह पर मुकालमे को फ़रोग मिलेगा। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और फौजी अफसरान, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सदर ममलकत ने वर्कशॉप मुकम्मल करने वाले शुरका में असनाद भी तकसीम की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कहा कि कलअदम टीटीपी को पाक अफगान बॉर्डर से दूर ले जाएं या फिर टीटीपी को हमारे हवाले कर दें। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म ने हालिया दौरा मॉस्को, बहरीन और ब्रसल्स के हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया। तफसील बता रही हैं नम्रा सुहेल। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि मॉस्को, बहरीन और ब्रसल्स के हालिया दौरे किए हैं। मॉस्को में SCO सरबराहान हुकूमत के इजलास में पाकिस्तान की माशी तरजीहात, इलाकाई रवाबित, तवानाई के शोबों में ताउन से मुतालिक पाकिस्तान का मौकिफ पेश किया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक को बताया कि अफगानिस्तान ने इंसदाद दहशत गर्दी के बारे में अपना वादा पूरा नहीं किया। अफगानिस्तान के दौरे में अमीर खान मुत्तकी ने कहा था कि उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उन पर वाज़े कर दिया कि चंद सौ गिरफ्तारियां काफी नहीं। पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने सिर्फ एक बात, आप अपने मुल्क और सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल मत होने दें। आप इसका कला कमा करें। आप TTP को या तो कहीं दुनिया से दूर ले जाएं अपने किसी और किनारे पे, या इनको हमारे हवाले कर दें। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर बंद करे। हम भारत को जब कहते हैं ना कि वो इन्वॉल्व है, तो हम हवा में नहीं कहते। हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है। उनको भी चाहिए कि प्रॉक्सी वॉर बंद करें। ये प्रॉक्सी वॉर है, ये इनको फाइनेंस करते हैं। प्रॉक्सी वॉर जो एक गेम है, ये उनके लिए भी अच्छी नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। सिद्के दिल से टेररिज्म को इरेडिकेट करना होगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अफ़गान अवाम की इमदाद की बहाली की दरख्वास्त मौसूल हुई है। उन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफ़गान अवाम की तकलीफ देखते हुए पाकिस्तान से इमदाद और खुराक जाने की इजाज़त ज़ेर गौर है। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। उसके बावजूद उन्होंने श्रीलंका को सिर्फ 114 रन पर जो है वो महदूद किया। सही। अच्छा ज़ीशान, नो डाउट जो बॉलिंग रही कौमी टीम की वो शानदार रही। बैटर्स की अगर बात की जाए, उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से एनालाइज करेंगे आज के मैच में? देखिए, बैटर्स जो हैं वो क्योंकि टारगेट जो था वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नहीं मिला था, 114 रन श्रीलंका ने बनाए थे, तो अंदाज़ा यही लगाया जा सकता था कि हमारे ओपनर साहिबजादा फरहान और साइम अयूब जो है वो जारहाना खेल खेलेंगे, और वही उन्होंने किया। उन्होंने 7 ओवर्स में जो है 46 रन बना लिए थे, लेकिन साहिबजादा फरहान जो है वो मलिंगा की गेंद पर बोल्ड हो गए। उन्होंने 23 रन स्कोर किए थे। साइम अयूब जो है वो अच्छी आगाह किया। नाज़रीन, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ारत ख़ारिजा के आला हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान पाकिस्तान और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात होगी। सियासी, इक़्तिसादी, माशी और दिफाई ताउन पर मुज़ाकरात होंगे। ग़ज़ा की सूरत हाल समेत आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख़याल किया जाएगा। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा के दौरे से दोनों मुल्कों की शराकत दारी मज़ीद मजबूत होगी।
पंजाब में कचरा ठिकाने लगाने के जदीद मंसूबे के तहत पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक सूबे भर में कचरा ठिकाने लगाने के तमाम बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, तिजारती मराकज़, सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में रंगदार कूड़ादान इस्तेमाल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। रंगदार कूड़ादान न लगाने की खिलाफ वर्जी करने पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का अदारा कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। इस जदीद मंसूबे का मकसद कचरे की मिकदार में कमी लाना और माहौल दोस्त रवैयों को फ़रोग़ देना है। तालीमी इदारे कचरे को उठाने के लिए पंजाब वेस्ट मैनेजमेंट की हेल्पलाइन 1139 पर राबता कर सकते हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस से मुतालिक अहम इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के हर मरले, हर किनाल और हर एकड़ पर सिर्फ और सिर्फ असल मालिक का ही कब्जा होगा। जमीन के केस के फैसले के बाद कोई सिफारिश या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब में खवातीन की जमीन के केसेस तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज को प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज पर ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि पंजाब हुकूमत ने 2 दिन में जमीनों के 1005 केसेस निपटा कर रिकॉर्ड कायम किया है। बरसों से अदालतों के चक्कर काटने वाले 1005 खानदानों को उनकी जमीन और मिल्कियत का हक वापस मिल गया। इस्लामाबाद में मुनक़िद होने वाले हुस्न क़िरत के बैनुल अक़वामी मुकाबले का इख्तिताम हो गया। तफसील बता रहे हैं नवाब अली शाह अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान में मुनक़िद होने वाले हुस्न क़िरत के पहले बैनुल अक़वामी मुकाबले का एजाज मलेशिया के कारी एमन रिजवान ने अपने नाम कर लिया है। ईरान के कारी अदनान मोमिन खामेश दूसरी और पाकिस्तान के कारी अब्दुल रशीद तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे। तकरीब में चौथी, पांचवी और छठी पोजीशन हासिल करने वाले कारी साहिबान को भी एजाज़ात से नवाजा गया। हुस्न क़िरत की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना है और जिसने भी इस मुल्क के साथ गद्दारी की है वो मिसाल बन गया है। टेररिज्म मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सॉइल। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कमिटेड है। अफवाज पाकिस्तान का ये एक क्लियर फैसला है कि हमने इस नासूर को दोबारा पाकिस्तान से इंशाअल्लाह खत्म करना है। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हुस्न क़िरत के बैनुल अक़वामी मुकाबले मुनक़िद करने में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी दिलचस्पी और रहनुमाई भी हासिल रही। पाकिस्तान में तिलावत कुरान, उसके पैगाम और उसके तक़द्दुस के फ़रोग़ के लिए न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में जो पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और वजारत मज़हबी उमूर जो एक किरदार अदा कर रही है वो खराज तहसीन के काबिल है। हुस्न क़िरत की बैनुल अक़वामी तकरीब के इख्तिताम पर उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और इत्तेहाद के लिए खुसूसी इज्तिमाई दुआ भी की गई। PTV न्यूज़ के लिए इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर से नवाब अली शाह। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सदारत में होने वाले इजलास में ज़रूरी अशिया की कीमत और रसद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने और आम आदमी को ज़रूरी अशिया की आसान फराहमी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इसाक डार ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि मुल्क भर में अशिया की बिला ताअत्तुल दस्तयाबी और कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। अफगान तालिबान दहशत गर्दों की दरअंदाजी में सहूलत कारी करते हैं। सीनियर सहाफ़ियों से मुल्की सलामती के उमूर पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है, जिसमें 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। DGISPR ने कहा कि रवा साल मुल्क भर में 67,023 ऑपरेशन किए गए। इस दौरान 136 अफगानियों समेत 1,873 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। उनका कहना था कि 4 नवंबर से अब तक 4,910 कार्रवाइयों में 206 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। DGISPR ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद करे। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के मराकज़ और अलकायदा, दाइश और दहशत गर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। वहाँ से उन्हें असलहा और फंडिंग भी मिलती है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। उनका कहना था कि हमने अफगान तालिबान के सामने तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से मुतालबा है कि वो एक काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहिदा करें। अगर काबिल तस्दीक मैकेनिज्म थर्ड पार्टी ने रखना है तो पाकिस्तान को उसका एतराज नहीं होगा। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल आगाही सालिस ममालिक को भी है।
एक डिल्यूजनल माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रिटोरिक। दीस टेररिस्ट्स आर नॉट ओनली पाकिस्तान स्पेसिफिक। जैसे मैंने कहा कि ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं, पूरी रीजन के लिए और तमाम रीजनल कंट्रीज के लिए। 2021 के बाद एक स्टेट बननी थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बननी थी, वो उसमें अपने आप को वो नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान हैज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ। और वहां पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं और उनको पैटर्नाइज कर रहे हैं। कंट्री स्पेसिफिक भी, रीजन स्पेसिफिक भी हैं। फितना अल ख्वारिज है, फितना अल हिंदुस्तान है, तो वहाँ ETIM भी पाई जाती है, वहाँ पे IMU भी पाई जाती है, वहाँ पे अलकायदा भी पाई जाती है, वहाँ पे दाइश भी पाई जाती है। वी से दैट यू नीड टू एक्ट नाउ लाइक ए स्टेट। 4 नवंबर से हमने 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की, which is coming to 233 intelligence based operations per day. So the intensity of the counter-terrorism effort, the kinetic counter-terrorism effort is going up. 233 per day. इस दौरान 206 terrorists were killed January 2025 से। The update is total we have IBOs that we have conducted is 67,023. KPK में उसमें से 12,000 something है, बलूचिस्तान में 53,000 और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में 857 है। टेररिस्ट इंसिडेंट्स टोटल पूरे साल के 4,729 हैं, जिसमें KPK के अंदर 3,357 है। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और यही नौजवान हमारे मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर खिताब में उन्होंने कहा कि हमने मार्का हक जीत लिया है, अब हमें मार्का तालीम और मार्का मईशत भी जीतना है। तफसील बता रहे हैं अनीसावान। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। हुकूमत का मकसद नौजवानों में लैपटॉप्स की तकसीम के जरिए डिजिटल तरक्की को फरोग देना है ताकि वो अपने आइडियाज को कारोबार में तब्दील कर सकें। 21वीं सदी में कंप्यूटर की जदीद तालीम हासिल करो, डिजिटल स्किल्स हासिल करो। इसके लिए हम आपको लैपटॉप्स देंगे, इसके लिए हम जदीद तरीन नेशनल इनोवेशन की लैब्स बना कर देंगे, इसके लिए हम आपको दुनिया की हर टेक्नोलॉजी की सलाहियत हासिल करने की, काबिलियत पैदा करने की सहूलत ला कर देंगे। और आपने पाकिस्तान को 21वीं सदी में नॉलेज और इनोवेशन लीडर बन के सुरखरू करना है। नारोवाल में निजी स्कूल में तकसीम इनामात की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि नौजवान नस्ल को जदीद तालीम के साथ अपनी तहकीकी सलाहियतों को भी निखारना होगा। आने वाला वक्त जो है वो इंसानी तारीख में इल्म और इजादात का दौर है, इनोवेशन का दौर है, तख्लीकी अमल को हासिल करने का दौर है। इस इल्म के दौर में वो कौम मजबूत है कि जिसकी ब्रेन पावर मजबूत है, जिसकी तख्लीकी सलाहियत मजबूत है, जो इजादात करने की सलाहियत ज़्यादा रखती है। उन्होंने कहा कि बहसीयत कौम हमें दुनिया को ये साबित करना है कि हम एक बासलाहियत और पुरअमन कौम हैं। वफाकी वजीर ने नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में शील्ड्स और इसनाद तकसीम की। अनीसावान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, नारोवाल। इतलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में अपने हल्का इंतखाब NA 127 का दौरा किया और पार्टी वर्कर्स से मुलाकातें की। वज़ीर इत्तलात ग्रीन टाउन में मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा आमिर जफर एडवोकेट के घर गए और उनके भाई एहसन जफर की शादी पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पूरे हल्के के मसाइल का फौरी हल मेरी अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फिरोजपुर रोड से मुल्हिका कच्चा जेल रोड पर मुस्लिम लीग वर्कर सरदार वारिस अली डोगर की रिहाइशगाह पर भी गए और उनकी अहलिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की।
वजीर इत्तलात ग्रीन टाउन लाहौर में साबिक काउंसलर रजा मुस्तफ़ा हाशमी के घर भी गए और उनके बड़े भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वफाकी वजीर शीजा फातिमा ने लाहौर में पैनल डिस्कशन से खिताब करते हुए कहा कि मसनूई ज़हानत को इंसान की मदद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि अगले 4 साल में पंजाब टेक्नोलॉजी और इंसानी तरक्की का मिसाली मॉडल बनेगा। तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी। लाहौर में निजी तालीमी इदारे के ज़ेर एहतमाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल के हवाले से पैनल डिस्कशन से खिताब करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन की वफाकी वजीर शीजा फातिमा ने कहा कि मसनूई ज़हानत को इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताहम उसमें साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी और अखलाकियात का ख्याल रखना ज़रूरी है। वफाकी वजीर ने कहा कि तालीम, सेहत, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली और अवामी खिदमात जैसे शोबों में AI से इस्तेफादा किया जा सकता है। The National AI Initiatives looks to train almost 1 million people in the next 5 years. Just in artificial intelligence technologies, we will be making centers of excellence across universities in the country to make sure that the capability is there, to make sure that at least at this point shared capability of AI compute is available to everybody. It's going to be very difficult for our upcoming generation to find jobs with the traditional degrees that we're giving out today. पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब इल्म और इंसानी तरक्की की मिसाल बनकर उभर रहा है। आइंदा 4 वर्ष में पंजाब टेक्नोलॉजी और इंसानी तरक्की में सर फहरिस्त होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में पहली AI यूनिवर्सिटी तामीर की जा रही है, जिसमें आलमी इदारों को अपने दफातर कायम करने की दावत दी जाएगी। We all have to invest in both in terms of education, health, and most importantly the job security, and that will come with the qualifications and of course the skill set of AI and machine learning in the future world. Pakistan government and also the Punjab government, we have just established Nawaz Sharif IT City in Punjab, in Lahore. The first AI university is being constructed. We are looking forward to having globally acclaimed universities and colleges in Pakistan, in Punjab, in next few years. सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि सूबे में 50,000 से ज्यादा नौजवानों को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंसेज, फैशन डिजाइनिंग और ज़राई शोबे में तरबियत दी जा रही है, जो तालीम को रोजगार से मुंसलिक करने की जानिब पहला कदम है। कॉन्फ्रेंस से दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया और तालीम को जदीद टेक्नोलॉजी से मुंसलिक करने और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के हवाले से इज़हार ख्याल किया। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से डेनमार्क के सफ़ीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शुबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर तिजारत ने कहा कि तरसलात ज़र और ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं। जाम कमाल ने डेनमार्क को लाहौर और कराची में आइंदा तिजारती नुमाइशों पर शिरकत की दावत दी। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी मरहूम की रिहाइशगाह आमद। मरहूम के साहबजादों इमरान सिद्दीकी और डॉक्टर नुमान सिद्दीकी से वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इरफान सिद्दीकी इल्मी, अदबी और सियासी लिहाज से मुनफरिद मकाम रखते थे और हमेशा शाइस्तगी और दलील से इख्तिलाफ राय का इजहार करते थे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की मुनासिबत से 29 नवंबर फ़लस्तीनी अवाम से आलमी यकजहती का दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पायदार आलमी अमन के लिए फ़लस्तीन का 2 रियासती हल नागुज़ीर करार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के बावजूद फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत जारी है। गज़ा में जारी इसराइली दहशतगर्दी से अब तक 69,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहादा में 50% से ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इसराइली जारियत से अब तक 1,70,965 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। इसराइली फोर्सेस ने गज़ा में हज़ारों टन धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया। आलमी मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी से मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। इसराइली बर्बरियत से गज़ा के निहत्ते अवाम को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत की है। नाज़रीन, आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी फ़लस्तीनी अवाम के साथ आलमी यौम यकजहती मनाया गया, जिसकी तफसील बता रही हैं कराची से नौरीन आसफ अपनी रिपोर्ट में। फ़लस्तीन में इंसानी जानों का ज़िया, घरों की तबाही और बुनियादी हकूक़ की मुसलसल पामाली, ये वो ज़ख्म हैं जो नस्लों से नहीं भर सके। आलमी कवानीन के मुताबिक हर इंसान को तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी, तालीम, सेहत और बावकार ज़िंदगी का हक हासिल है।
मगर फलस्तीनी अवाम अब भी अपने इन हकूक से महरूम हैं। फलस्तीनियों से यकजहती का दिन आलमी बरादरी को इस हकीकत पर अपनी तवज्जो मरकूज करने का मौका फराहम करता है कि फलस्तीन का मसला अभी तक हल तलब है और फलस्तीनी अवाम अभी तक अपने नाकाबिल तनसीक हकूक हासिल नहीं कर पाए हैं। मुसलसल पाबंदियों, बेदखली, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और इसराइली मुहासरों के बावजूद फलस्तीनी अवाम अपनी जमीन, शनाख्त और आज़ादी के लिए साबित कदम हैं। फ़लस्तीन का मसला जो 7 अक्टूबर के बाद से शुरू हुआ है नए दौर में, इसमें पूरी दुनिया ने जिस तरीके से फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इजहार किया है वो आज तक कभी भी दुनिया की तारीख में किसी भी कौम के लिए नहीं मिला है। जिन सियासतदानों ने और जिन ममालिक ने इस फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ साथ दिया है उनको उनकी अवाम ने सड़क पे रिजेक्ट किया है कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा फलस्तीनी अवाम की सियासी, इखलाकी और सफारती हिमायत की है और फलस्तीनी अवाम पर होने वाले जुल्म और जबर के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाई है। दुनिया के कई ममालिक की तरह पाकिस्तान के अवाम भी फलस्तीनियों को जल्द बुनियादी हकूक की फराहमी चाहते हैं ताकि खित्ते में अमन व इंसाफ की राह हमवार हो सके। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फोर्सेज की तरफ से इंसानी हकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि भारतीय कब्जे में कश्मीरी जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहास ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि मुहासरे और तलाशी की बढ़ती कार्रवाइयों, बिला जवाज गिरफ्तारियों, अमलाक की जब्तगी, मकानात की मिसमारी और मुस्लिम मुलाजिमीन की जबरी बरतरफी ने कश्मीरियों का जीना हराम कर रखा है और वो मुसलसल एक खौफ और दहशत के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय इंतजामिया कश्मीरी सहाफ़ियों, इंसानी हकूक और सिविल सोसाइटी के कारकुनों को इलाके की हकीकी तस्वीर दुनिया के सामने लाने पर इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों पर जोर दिया कि वो इलाके की अबतर सूरत हाल का फौरी नोटिस लें और इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम पर भारत को जवाबदेह ठहराएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल हुकाम को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सरबराह मोहम्मद यासिन मलिक को इलाज मालजी की मुनासिब सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी है। गुज़िश्ता कई बरस से जेल में कैद मोहम्मद यासिन मलिक दिल और गुर्दों के संगीन अमराज में मुब्तला हैं और उन्हें बेहतर इलाज की सख्त ज़रूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में वर्किंग कमेटी इजलास में भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वो कश्मीर का रियासती दर्जा फौरी तौर पर बहाल करे, जिसका उसने पार्लियामेंट के फ्लोर पर वादा किया है। इजलास में भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी तलबा और ताजरों को हिरासा किए जाने पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए हुक्काम से मुतालबा किया गया कि वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। श्रीलंका में समुद्री तूफान दत्वा के बायस शदीद बारिशों, सैलाब, लैंड स्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 153 हो गई है। श्रीलंका के डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया कि तूफानी बारिशों के बायस अब तक 193 अफराद लापता हैं। ज्यादातर अमवात लैंड स्लाइडिंग की वजह से हुई हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 8 लाख के करीब अफराद बेघर हो गए। श्रीलंकन हुकाम के मुताबिक मुल्क के मशरकी और जनूबी इलाकों में फिर सैलाबी सूरत हाल का खदशा है, जबकि दारुल हुकूमत कोलंबो में भी सैलाब का खतरा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने श्रीलंका में बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में अपने श्रीलंकन भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने श्रीलंका की हुकूमत और आवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए इमदाद, बहाली और रेस्क्यू के इक़दामात में हर मुमकिन ताउन की पेशकश की है। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख ने कहा है कि PTI का ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट बड़ी सियासी गलती है। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात में मुल्क भर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नया NFC अवार्ड सूबों की मुशावरत से तश्कील दिया जाएगा ताकि वफाक और सूबे दोनों मजबूत हों। PTI हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि गैर मौसर फैसलों ने मुल्क को डिफॉल्ट की जानिब धकेला। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ताजरों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए मुश्किल फैसले किए। अफगानिस्तान जो है वो उसकी इकॉनमी बेस करती है दहशत गर्दी के ऊपर। हमें ऐसी ख्वाब देख रहे हैं कि वो जो दहशत गर्दी ख्वाब अपने लोगों को देखेंगे। 25 वार्ड लॉर्ड है वहाँ पे, वो सारे के सारे जो है वो जितना पैसा लेते हैं वो दहशत गर्दी के लिए दुनिया से ले रहे हैं। तो वो तो दहशत गर्दी के लिए इकॉनमी, हमारी इकॉनमी बेस करती है इस 25 करोड़ आवाम की इंडस्ट्री के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर। हमने अपनी इकॉनमी को बेहतर करने से
یہ پرائم منسٹر کا بھی ویژن ہے, ہمارا بھی ویژن ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آواز, توانا آواز بن کے وہاں پہ بولتے ہیں, بولتے رہیں گے. اگر وہاں پہ نہ بولتے ہوتے تو ادھر بیٹھ کے میں ایسی باتیں کیوں کرتا؟ مجھے کوئی بہار نہیں, کسی کا نہیں. اس ملک کا ہمیں بہار ہے. اس کے جو انڈسٹریلسٹ ہے, جو یہاں پہ ٹیکس دیتا ہے, وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فروٹفل ہے اس ملک کے لیے. تخفیف غربت کے وفاقی وزیر پیر عمران احمد شاہ نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب کے دوران فلاحی اداروں کی امدادی سرگرمیاں لائق تحسین تھیں. لاہور میں مقامی ٹرسٹ کے رضاکاروں میں ایوارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے والی تنظیمیں اور رضاکار پاکستان کا روشن چہرہ ہیں. انہوں نے کہا کہ غربت کے خاتمے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کا سلسلہ جاری ہے. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے استنبول میں ترک سیکیورٹی اداروں کے استعداد کار میں اضافے کے لیے نئی سیکیورٹی گاڑیوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی. 9200 نئی سیکیورٹی گاڑیوں کا باقاعدہ طور پر خدمت میں شامل ہو گیا ہے. اس موقع پر ترک صدر رجب طیب ایردوان نے جدید گاڑیوں کی فراہمی کو داخلی سلامتی کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا. تقریب میں وزیر مملکت طلال چودھری نے ترک صدر سے ملاقات بھی کی. ملاقات میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے لیے نیک خواہشات اور پیغامات کا تبادلہ کیا گیا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان سے سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد نے ملاقات کی. ملاقات میں SMEs کے مسائل, ٹیکسیشن, برآمدات میں حال رکاوٹ اور علاقائی روابط کے نئے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفد نے پشاور میں جیم سٹونز, فارماسیوٹیکل سمیت ابھرتے ہوئے صنعتی شعبوں کی صلاحیتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ پروڈکٹ فنشنگ سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کی کمی برآمدات میں بڑی رکاوٹ ہے. وفاقی پارلیمانی سیکریٹری برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت فرحان ناز اکبر نے کہا ہے کہ حکومت شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے. اسلام آباد میں مسیحی برادری کی جانب سے منعقدہ ویمن کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے. پارلیمانی سیکریٹری نے مسیحی کمیونٹی کی خواتین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے اور فوری حل کی یقین دہانی کرائی. فرحان ناز اکبر نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام سے کیے وعدوں کی پاسداری کی ہے. IBCC کی جانب سے 2 روزہ نیشنل کنسولیڈیشن ورکشاپ کا کامیاب انعقاد کیا گیا. ورکشاپ کی اختتامی نشست سے خطاب میں پارلیمانی سیکریٹری برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت فرحان ناز اکبر نے اساتذہ کی تربیت اور امتحانی اصلاحات کے فروغ کے لیے IBCC کی کاوشوں کو سراہا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر IBCC ڈاکٹر غلام علی ملاح نے کہا کہ جدید امتحانی نظام کی طرف منتقلی اور شفاف اور مؤثر پیپر سیٹنگ کے لیے آئٹم رائٹرز کی پیشہ ورانہ تربیت ناگزیر ہے. ورکشاپ میں ملک بھر سے ماہرین تعلیم نے شرکت کی. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر اور وزیر مملکت برائے تعلیم وجیہہ قمر نے مانسہرہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خصوصی فنڈ سے تعمیر ہونے والے پل کا افتتاح کیا. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے کہا کہ عوام کی خدمت کرنا مسلم لیگ نون کا منشور ہے. انہوں نے کہا کہ PTI کی حکومت نے خیبر پختونخوا کے عوام کو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں وزارت عظمیٰ کا منصب کسی چیلنج سے کم نہیں, عوامی مسائل حل کریں گے. ضلع نیلم کے دورے کے موقع پر کنڈل شاہی میں عوامی اجتماع سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وقت محدود ہے, عوام کی بنیادی مسائل کے حل کے لیے ہر حد تک جائیں گے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ بانی PTI نے وزیر اعظم شہباز شریف پر پیناما پیپر سے متعلق بے بنیاد الزامات لگا کر ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. لاہور میں سیشن کورٹ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت قانون کی حکمرانی, معاشی بحالی اور سیاسی استحکام کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے. آئین میں ترمیم وقت کی ضرورت ہے جو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. اس سے قبل محمد شہباز شریف کی جانب سے بانی PTI کے خلاف ہتک عزت کے دعویٰ کیس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور اپنا بیان ریکارڈ کرایا. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک, جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند اور سموک پڑنے کا امکان ہے. اگلے چند روز کے دوران شمالی علاقوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان ہے, جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند میں بتدریج اضافہ متوقع ہے. کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने WBA वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल का कामयाबी से दिफा कर लिया। लाहौर में दूसरी बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी में WBA वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल फाइट में मोहम्मद वसीम ने थाईलैंड के बॉक्सर जकरावत माजोंगो को शिकस्त दी। Wasim just teeing off on his opponent in the last round, ladies and gentlemen. इब्तिदा में थाई बॉक्सर हावी रहे और उन्होंने मोहम्मद वसीम पर मुतादिद हमले किए। बाद में मोहम्मद वसीम ने शानदार कमबैक करते हुए हरीफ बॉक्सर पर मुक्कों की बारिश कर दी। थाई बॉक्सर के पास पाकिस्तानी बॉक्सर के मुक्कों का कोई जवाब न था। टाइटल फाइट 12 राउंड्स पर मुश्तमिल रही, जिसके बाद जजेस ने मोहम्मद वसीम को फातेह करार दिया। In Lahore, Pakistan, ladies and gentlemen. My word. What a fight, Kerry. Wow. पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि लाहौर में दूसरी बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान निहायत उम्दा और सनसनीखेज़ मुकाबले देखने को मिले। तमाम खिलाड़ियों को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। चैंपियनशिप के अख्ताम पर तक़सीम एज़ाज़ात की तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि एज़ाज़ का दिफा करने पर पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला ने कहा कि जीत और हार हर मुकाबले का हिस्सा होती है। चैंपियनशिप में पाकिस्तान की कामयाबी से बहुत खुशी हुई। वज़ीर आला ने इवेंट के कामयाब इनेकाद पर पाक फौज और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात दिए। दूसरी बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खवातीन की सुपर फेदरवेट फाइट में पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर लौरा अकरम फातेह रहीं। उन्होंने तीसरे राउंड में पाकिस्तान की कोमल अखलाक को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। WBA एशिया साउथ सुपर मिडलवेट टाइटल बरतानिया के जैमी कैली जूनियर के नाम रहा। 10 राउंड्स की फाइट में उन्होंने थाईलैंड के चायोत मुनफांग को हरा दिया। WBA एशिया गोल्ड फेदरवेट टाइटल मेक्सिको के एडवर्ड बायस ने जीता। 10 राउंड्स की फाइट में एडवर्ड बायस ने बरतानिया के एलेक्स डेलमाग्नी को मात दी। WBA एशिया गोल्ड सुपर वेल्टरवेट टाइटल मेक्सिको के जेसिस सराचो ने जीत लिया। उन्होंने 10 राउंड्स पर मुश्तमिल फाइट में अमेरिका के पीटर डॉबसन को शिकस्त दी। WBA वर्ल्ड गोल्ड वेल्टरवेट टाइटल फाइट फ्रांस के मेमोने के नाम रही। उन्होंने मराकश के तारिक ज़ेना को जजेस के मुतफ़क्का फैसले के बाद हरा दिया। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने कहा है कि पाकिस्तान ने आला सतह का आलमी बॉक्सिंग इवेंट कामयाबी से मुनक्किद किया। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के आखिरी रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आमिर खान ने कहा कि इंतहाई कम वक्त में पूरा एरेना तैयार किया गया। शानदार इवेंट पर पाकिस्तान आर्मी और पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप का कामयाब इनेकाद इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान आलमी इवेंट्स की मेजबानी की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने 3 मुल्की T20 सीरीज जीत ली है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी। श्रीलंकन टीम 19.1 ओवर्स में 114 रन बनाकर आउट हो गई। 84 रन पर श्रीलंका का एक खिलाड़ी आउट था। इस मौके पर पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग के बाद श्रीलंकन टीम 114 रन पर हिम्मत हार गई। इब्तदाई 3 बल्लेबाजों के अलावा कोई भी डबल फिगर तक ना पहुंच पाया। कामिल इशारा 59 रन के साथ नुमायां बल्लेबाज रहे। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद ने 2, सलमान मिर्जा और साइम अयूब के हिस्से में 1-1 विकेट आई। ग्रीन शर्ट्स ने 115 रन का हदफ 18.4 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कामयाब हुए। बाबर आजम ने 34 गेंदों पर 37 रन बनाए और नॉट आउट रहे। उन्होंने 1 छक्का और 2 चौके लगाए। मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। ग्रीन शर्ट्स ने रवान खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।